لائنز آپ جان چکے. سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں صحت کا شعبہ تاحال تبدیلی کا منتظر ہے. پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی 13 سال سے تکمیل کی راہ دیکھ رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان بھی ہاسپٹل کو مکمل کرنے کا اعلان کر کے بھول گئے ہیں. عظمت علی شاہ کی رپورٹ دیکھیے. خیبر پختونخوا میں دل کے مریضوں کی مشکلات ہیں کہ کم نہیں ہو رہی. پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی تعمیر کا منصوبہ 13 سال پہلے شروع ہوا جو اب تک ادھورا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے بھی ہسپتال کو 6 مہینے میں مکمل کرنے کا اعلان کیا مگر پھر بھول گئے. تاخیر کا شکار رہا. پھر ہماری حکومت نے اس میں انیشیٹو لیا, اس کو کمپلیٹ کیا. اس کے لیے ایکوپمنٹ بھی ہم نے آرڈر کیا کیونکہ سینسٹیو ایکوپمنٹ تھا تو وہ آرڈر کیا ہوا ہے. اس کی وہ بھی آنا ہے. میرے خیال سے کچھ پہنچ گیا, کچھ پہنچ رہا ہے. شہریوں کے لیے دل کا ہسپتال لائف لائن ہے مگر ان کی کون سنے. ہسپتال کو پائے تکمیل تک پہنچانا مسئلہ بن گیا. شاہراہ ترکئی نے ملبہ فنڈز کی کمی پر ڈال دیا. خیبر پختونخوا میں دل کے امراض میں مبتلا افراد کی تعداد 1,27,000 سے تجاوز کر گئی ہے مگر حکومت سب اچھا کا راگ الاپ رہی ہے. تو خیبر پختونخوا میں صحت کا شعبہ تبدیلی کا منتظر ہے. پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی 13 سال سے ادھورا ہے. وزیر اعظم بھی ہاسپٹل کو مکمل کرنے کا اعلان کر کے بھول چکے ہیں. عظمت علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جان لیتے ہیں. عظمت بتائے گا صورتحال کیا ہے, کچھ انتظامیہ کا حکومت کا موقف آیا اس پر؟ حکومت جو کہ پچھلے ادوار میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی رہی اور اس دور میں بھی پھر دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت خیبر پختونخوا صوبے میں آئی. پہلے برن سینٹر کا قیام جو تھا وہ تاخیر کا شکار تھا اور تکمیل کے لیے منتظر تھا, لیکن اس کے بعد 1,37,000 سے زائد جو کہ دل کے امراض کے پیشنٹ ہیں, مریض ہیں, وہ بھی جو ہے اپنے صوبے کے واحد سینٹر جو کہ سینٹر آف کارڈیالوجی ہے اس کی تکمیل کے منتظر ہیں. 13 سال گزرنے کے بعد بھی اب تک یہ سینٹر جو ہے اس کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا. ادران اگر آپ کو دکھا سکے تو یہ وہ سینٹر ہے جو کہ فل فلیج بنا ہوئے ہے اور 13 سال بعد بھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا. 250 بستروں کے اسپتال کی تعمیر 2005 میں شروع ہوئی. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے گزشتہ سال امراض قلب اسپتال کی تعمیر 6 ماہ میں مکمل کرنے کی یقین دہانی کرائی اور 5 ارب روپے خرچ ہوں گے. تو پاکستان تحریک انصاف کی جو صحت اصلاحات کے دعوے اور وعدے ہیں وہ اب وعدے اور دعوے ہی ہیں. ٹھیک ہے عظمت, بہت شکریہ اس بارے میں اپڈیٹ کر رہے تھے. تو 13 سال بیت چکے ہیں, یہ منصوبہ تاحال مکمل نہیں ہو سکا ہے. پشاور اور خیبر پختونخوا سے امراض قلب کے مریضوں نے علاج کے لیے پنجاب اور اسلام آباد کا رخ کر لیا ہے. ان کا مطالبہ ہے کہ صوبائی حکومت خیبر پختونخوا میں انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے منصوبے کو جلد مکمل کرے. ہونا چاہیے, اتنی دور آنے کی ضرورت نہ پڑے. پہلے بھی کچھ نہیں ہو رہا تھا اور ابھی بھی کچھ نہیں ہو رہا. یہاں پہ کہ سچویشن ایسی ہے کہ کوئی بیچارہ غریب آتا ہے تو وہ بیچارہ چکر لگا لگا کے گھوم جاتا ہے. وہاں پہ سہولت نہیں ہے تو ظاہری بات ہے اتنی دور سے سفر کر کے آتے ہیں وہ, اور یہاں پہ جو ہے سسٹرز وغیرہ کا بیہیور بھی اچھا نہیں ہوتا ان کے ساتھ. ہمیں چاہیے کہ کے پی کی میں نا ہاسپٹل بنایا جائے. اسلام آباد میں بھی ہونے چاہیے اور کے پی کی میں بھی, اور بلوچستان میں, سندھ میں, ہر صوبے میں ہونے چاہیے. اسی بارے میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب. بہت شکریہ شیرپاؤ صاحب آپ کے وقت کا. پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا یہ منصوبہ 13 سال بیت گئے لیکن تاحال مکمل نہیں ہو سکا ہے. مریضوں کو یہاں پر شدید مشکلات کا سامنا ہے. سر کیا کہیں گے آپ اس منصوبے کے تاحال نامکمل ہونے کے حوالے سے؟ بہت افسوس کی بات ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں پشاور کی اور خیبر پختونخوا کی آبادی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور یہ انسٹیٹیوٹ جو تھا یہ ان کی ضرورت تھی. اس کے اوپر تقریباً 5 ارب سے زیادہ پیسے لگ چکے ہیں. ایکوپمنٹ وغیرہ نہیں آیا. 13 سال میں لوگ انتظار ہی کرتے رہے. ابھی بھی تقریباً 1,20,000 30,000 مریض ہیں اس کے ہارٹ کے جن کو ضرورت ہے. تو پچھلے دور میں بھی عمران خان صاحب ادھر گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں ہفتے میں اس کو کرا دوں گا. پھر یہ وعدے کرتے رہے لیکن اب تک کچھ بھی نہیں ہوا. اور اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ منصوبہ یوں کہ تو ہی رہے گا. یہ نئے منصوبے کوشش کرتے ہیں کہ نئے منصوبوں پہ کوئی اپنی تختی لگا دے, لیکن ایسے منصوبے جو کہ
काम आ सकते हैं, जिसकी बिल्डिंग मुकम्मल है, तो इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन ये सिर्फ दिखावे के लिए काम करते हैं, और मैं समझता हूँ कि हेल्थ की जो पोजीशन है खैबर पख्तूनख्वा में, वो नागुफ्ता बे है, और बहुत लोगों को परेशानियां हैं और दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। जहाँ तक प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, तो उसकी इनकी वो गरीब आदमी के लिए तो वो वहाँ जाना भी मुमकिन नहीं है। तो ये एक सहारादार, उसके ऊपर भी इन्होंने कोई काम नहीं किया, तो ये बड़ी अफसोस की बात है इस लिहाज से। शेरपाव साहब, ये गुज़िश्ता हुकूमत के दौरान ये मंसूबा शुरू किया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी जो गुज़िश्ता दौर था, उसमें दीगर मंसूबे जो है वो शुरू किए गए। सेहत इंसाफ के नाम से जो है वो मंसूबा शुरू किया गया, लेकिन इन हस्पतालों की हालत ज़ार की जानिब तवज्जो नहीं दी गई। आपको लगता है कि ये भी सियासत की नज़र होते जा रहे हैं मामलात? बिल्कुल आपकी बात सही है कि सियासत की नज़र ही हो रहे हैं। वो ये समझते हैं कि अगर इसके ऊपर इसको हमने मुकम्मल कर दिया तो नाम किसी और का होगा। हालांकि हम तो ये समझते हैं कि जो भी उसको कंप्लीट कर दे तो उनका शुक्रिया कि भाई लोगों को कुछ सहूलत मिल जाएगी। सेहत कार्ड, क्योंकि ये इनका अपना मंसूबा है, तो उसके ऊपर बड़े बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं। ये तो कहते थे कि हमने अस्पतालों की हालत बेहतर कर दी है, कोई बेहतरी नहीं आई है, वही सूरत हाल जो कि तू खराब है। तो इस लिहाज से ये सियासत की नज़र हो गया, और अब भी हम चाहते हैं कि इसको जल्दी मुकम्मल हो, और ये इस हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि कोई डेट लाइन दे। BRT अभी तक वो मुकम्मल नहीं हुई, उसका तो डेट लाइन देते हैं, इसके भी कोई डेट लाइन दे कि भाई हम इतनी मुद्दत में इसको कंप्लीट कर देंगे और इसमें इक्विपमेंट आ जाएगी और ये फंक्शनल हो जाएगा। ठीक, हम कोशिश करते रहेंगे कि हुकूमत की तवज्जो इस जानिब भी मबजूल हो सके। बहुत शुक्रिया शेरपाव साहब आपके वक्त का। और जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी इलाज का निश्तर अस्पताल में दवाइयों के मसों और मुख्तलिफ ठेकों में खुर्द बुर्द का इंकशाफ हुआ है। एंटी करप्शन मुल्तान ने पर्चा भी दर्ज कर लिया है। मज़र खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद जान लेते हैं। मज़र, ये मुकदमा, ये पर्चा किन दफात के तहत दर्ज किया गया है और तहकीकात में अब तक क्या सामने आ पाया? पहले तो जो निश्तर अस्पताल मुल्तान है उसकी अहमियत के बारे में मैं आपको बताऊं तो निश्तर अस्पताल जनूबी पंजाब के जो 13 अजला हैं उनके साथ साथ KPK और बलूचिस्तान से भी यहाँ पर मरीज आते हैं, क्योंकि जो KPK के इलाके हैं जो साउथ पंजाब के साथ अटैच हैं और बलूचिस्तान के जो इलाके हैं साउथ पंजाब के साथ अटैच हैं उनको पेशावर जाना और वहाँ से कोयटा जाना ज्यादा फासला पड़ता है। इस वजह से यहाँ पर डेली हजारों मरीजों की जो आमदोरफ्त है उसका यहाँ पर आना जाना लोगों का लगा रहता है। मरीज आते हैं, यहाँ पर दाखिल होते हैं अपने इलाज मुआवजे के लिए, लेकिन इतनी अहम और जो आप कह सकें कि जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा इदारा है, वहाँ पर ये अफसोसनाक जो है ये खबर सामने आई है कि एंटी करप्शन ने इस पर मुकदमा भी दर्ज किया है कि यहाँ पर मुख्तलिफ अद्वियात जो हैं, मेडिसिन से जो सरकारी तौर पर खरीदी जा रही थी उनमें करप्शन की गई। उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो मनसूबे हैं जिसमें CCTV कैमरे हैं, सड़कों की मुरम्मत है और दीगर अमूर हैं, वहाँ पर भी करप्शन की गई। इस तरह से 2 इंक्वायरीज थी जो निश्तर अस्पताल के मुतालिक एंटी करप्शन में चल रही थी और एंटी करप्शन ने बाकायदा उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। और ये मुकदमा जो है ये मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है निश्तर अस्पताल के डॉक्टर आशिक मलिक उन पर है और उसके साथ साथ AMS फार्मेसी हैं उनके खिलाफ है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो कंट्रैक्टर्स हैं उनके भी खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। अगर हम इसकी तफसील में जाएं, अद्वियात की खरीदारी में क्या करप्शन की गई, तो अब तक जो एंटी करप्शन हुकाम की जानिब से जो तफसीलात सामने आई हैं और जो मुकदमे का हिस्सा भी बनाई गई हैं उसमें सबसे पहले जो IV ड्रिप्स हैं वो उसमें बताया गया है कि 2 लाख के करीब IV ड्रिप्स जो हैं वो निश्तर अस्पताल की जरूरत हैं। लेकिन जब ये ठेका दिया गया तो उसमें इब्तदाई तौर पर ये 10 लाख तक पहुंचा दी गई इसकी जो क्वांटिटी है, जिसकी वजह से जो दीगर जो ज्यादा तादाद में मेडिसिन मंगवाई गई तो वो यहाँ पर स्टॉक करना ही मसला बन गया निश्तर अस्पताल में, और जिसकी वजह से कौमी खजाने को भी नुकसान हुआ और वो जो IV ड्रिप्स थी बड़ी तादाद में वो जाया भी हुई। इसी तरीके से मुख्तलिफ जो इंजेक्शन हैं उनको जायद मंगवाए गए। अब एक इंजेक्शन जिसके बारे में एंटी करप्शन ने बड़ा कैटेगरिकली लिखा है कि उसकी जो क्वांटिटी थी, जो जरूरत थी, वो 200 इंजेक्शन थी पर ईयर की एंटी करप्शन ये निश्तर अस्पताल मुल्तान में, लेकिन वो 7,500 मंगवाई गई और इस तरीके से ये हजारों रुपए मालियत के जो इंजेक्शन थे वो जाया हो गए, उनकी एक्सपायरी डेट जो है वो करीब थी। इस तरीके से
अगर आप मुख्तलिफ सिरप हैं, एक सिरप है जिसके बारे में एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि उसकी 10,000 बोतलें मंगवाई गई, लेकिन वो करोड़ों रुपए मालियत की थी, लेकिन उनमें से एक बोतल भी 1 साल के अंदर इस्तेमाल नहीं की गई। इस तरीके से अगर आप मजमूई तौर पर देखें तो ये इंतहाई एक अफसोसनाक वाकया है कि जहां शहरी जो हैं, गरीब शहरी इस सरकारी अस्पताल तक पहुंचते हैं क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों में काफी महंगा इलाज है, और वो सिर्फ इसी गर्ज से आते हैं कि यहाँ सरकार उनको बेहतर तिब्बी सहूलत देगी, मुफ्त दवाइयाँ मिल जाएंगी, लेकिन उन दवाइयों में जो बड़े पैमाने पर जो करप्शन सामने आई है, ये एक इंतहाई अफसोसनाक लम्हा है। और एंटी करप्शन हुकाम ने इस हवाले से जो यहाँ पर जिम्मेदार अफराद थे, जिनमें MS हैं, दीगर जो फार्मेसी के अफसरान हैं, उनकी जानिब से उनके खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज किया है और MS निश्तर अस्पताल ने अबूरी जमानत भी अपनी करवा ली है। लेकिन जो इन तमाम अमूर को अगर आप बगौर जायजा लें तो उसमें जो जैसे CCTV कैमरे, क्योंकि मुल्क के हालात ऐसे हैं तो उसमें तमाम जो बड़े इदारे होते हैं वो क्लोज सर्किट कैमरे लगवा रहे हैं, लेकिन इस जो मनसूबे में भी 23 लाख रुपए से जायद की करप्शन की गई। इसी तरीके से मुख्तलिफ रोड की मरम्मत के लिए, टाइप रजिस्टर के लिए यहाँ पर भी तकरीबन 51 लाख रुपए की करप्शन की गई। और तमाम जो अमूर हैं इसको यकजा करके जो एंटी करप्शन हुकाम है उनकी जानिब से ये मुकदमा दर्ज कराया गया है। जो शहरी हैं, मुख्तलिफ हमारी उनसे बात हुई है तो उनका ये कहना है कि कंस्ट्रक्शन का, CCTV कैमरों का तो चलो ये एक इंतजामी मामला है, लेकिन जो दवाइयों का चैप्टर है वो एक आम आदमी से मुंसलिक है, क्योंकि एक गरीब आदमी ही सरकारी अस्पताल तक पहुंचता है और उसको जब अगर दवाई ही ना मिले, और अगर वो दवाई मिल भी रही है और उसकी वो क्वांटिटी पूरी ना हो, उसके साथ साथ जो उनको सहूलियात, तिब्बी सहूलियात हैं वो अप टू डेट ना हो, तो यकीनन शहरियों के लिए भी ये एक परेशानी का बाइस है और जो आम आवाम है उसके लिए भी परेशानी का बाइस है। इस हवाले से जो एंटी करप्शन हुकाम है उन्होंने ये कैटेगोरिकली वाजे किया है कि बाकायदा इंक्वायरी करके ये मुकदमा दर्ज किया गया है और उसमें तमाम जो फ्री कैन थे उनको तलब किया गया, उनके बयानात लिए गए, जो तमाम मुतलका रिकॉर्ड था वो खास तौर पर जो है वो इकट्ठा किया गया। इसके साथ साथ एंटी करप्शन हुकाम का ये भी बताना है कि 4 साल का जो मेडिकल यहाँ पर मेडिसिन परचेज का जो रिकॉर्ड है उसको भी कब्जे में लेने की कोशिश की जा रही है और इस हवाले से निश्तर अस्पताल इंतजामिया के साथ भी वो मुसलसल राब्ते में है ताकि वो रिकॉर्ड कब्जे में आए और उसके बाद उसकी मजीद जांच पड़ताल की जाए। और जो अब तक की अगर आप कह लें कि अब तक की क्या पेशरफ्त है तो उसमें यही कहा जा सकता है कि ये जो करप्शन की रकम है इसमें बड़े पैमाने पर मजीद इजाफा होने का इम्कान है, क्योंकि जो बड़ी तादाद में जो मुख्तलिफ, अच्छा इसमें एक और ख़ास चीज़ जो है वो मनपसंद कंपनियों को जो ठेके दिए गए, जैसे कंपनी एक कंपनी है उसको स्पेसिफिक कर दिया गया टेंडर देने के बाद कि इस कंपनी से ही लिए जानी है ये दवाई, जिसकी वजह से जो मखसूस कंपनियां थी उनसे जो आप कमीशन वसूल किया गया। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये एक ऐसे इदारे में जहां पर जो एक आम आदमी जो ठीक है, तो सेहत के शोबे के साथ भी खिलवाड़ किया गया। मजहर बहुत शुक्रिया, इस बारे में अपडेट कर रहे थे। साहिवाल मैटरनिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का कारनामा, जचकी ऑपरेशन के दौरान कैंची खातून के पेट में भूल गए, दर्द से निढाल खातून दोबारा हॉस्पिटल पहुंची तो सारा अमला गायब हो गया। बस इधर आए हुए हैं अपने मरीज का लेके और हमारा कोई नहीं हमारी बात सुन रहा है, इसलिए कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हमें धक्के देने की कोशिश कर रही है और हमको यहाँ से निकाला जा रहा है और ये भी नहीं इतराफ़ कर रहे कि इसके पेट में कुछ है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी पंजाब ने फंड्स ना मिलने पर सूबे भर के हॉस्पिटल्स में तामीर और मुरम्मत का काम बंद कर दिया है। सेक्रेटरी सेहत मोहम्मद खान रांझा ने महकमा खजाना पंजाब और PND से 1.5 अरब रुपए की इजाफी रकम जल्द अज जल्द जारी की इस्तदा की है। इसी हवाले से बता रहे हैं अली रामेद जी। अली जी बिल्कुल, पंजाब में माली बहरान होने के बायस IDAP अथॉरिटी ने सरकारी अस्पतालों में खास तौर पर तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल की जो रिवैम्पिंग है उसका प्लान जो है वो बंद कर देती है। मेरे सामने आप देखते हैं मियां मुंशी हॉस्पिटल है, लेकिन इसकी एक्सटेंशन का जो प्रोग्राम था उस हवाले से अब आपको बताएंगे कि जिसकी जो एग्जिस्टिंग है कि जो इसकी एक्सटेंशन दी जानी है उस प्लान पर हुकूमत जो है वो क्या कर रही है। तो जो IDAP अथॉरिटी की तरफ से प्लान बनाया गया था कि इसकी रिवैम्पिंग की जाएगी पंजाब के 40 अस्पतालों में, खासतौर पर तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल और DHQ हॉस्पिटल। तो उसी पर आपको बताएंगे कि ये इसकी वो एक्सटेंशन है जिसका तोसी जो है वो की जानी थी, लेकिन वो अभी तक इल्तवा का शिकार है। और ये तमाम इसकी एक्सटेंशन जो वो की जानी थी मियां मुंशी हॉस्पिटल की, जो कि तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है। तो इसी में ये रिवैम्पिंग का जो प्लान था IDAP अथॉरिटी की तरफ से, इस पर बजट जो है वो अब रोक दिया गया और बजट रोकने के बायस जो तामीराती काम है वो भी रोक दिया। आप देख लें, आपको कहीं पर यहाँ पर कोई मजदूर नज़र नहीं आ रहा होगा किस तरह यहाँ पे काम जो है वो रोक दिया गया। और इसकी सिर्फ वजह यही है
کہ پنجاب میں فنڈز کی قلت ہے اور قلت کے باعث ہی IDAP اتھارٹی کی طرف سے ریویمپنگ کا جو پلان تھا اس کے لیے کام بند کر دیا گیا. اسی پر اب سیکٹری جو صحت ہے ان کی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو محکمہ خزانہ پنجاب اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کو خط لکھا گیا ہے کہ بارہا فنڈ جو ہے ان کا اجرا کیا جائے تاکہ جو ریویمپنگ کا پلان ہے اس کو مکمل کیا جا سکے. اور اس میں اہم بات ایک یہ بھی ہے کہ یہ 100 ڈے کا جو پلان تھا پنجاب حکومت کا خاص طور پر محکمہ صحت کا کہ جتنے بھی THQ اور DHQ ہیں ان کی ریویمپنگ کا پلان جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے. اور اب 1.5 ارب روپے مزید جاری کرنے کے احکامات اور ان کی استدعا کی گئی ہے سیکرٹری صحت کی طرف سے کہ اگر یہ بجٹ ریلیز کر دیا جائے تو یہ جو ایکسٹینشن کا پروگرام ہے اس کو فوری طور پر. ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی آپ کا. جرمن سفیر مارٹن کوبلر کا وزیر اعلیٰ KPK محمود خان سے بڑا سوال. وہ کہتے ہیں جرمنی نے ازخیل میں 12 انچ موٹی 1 کلومیٹر سڑک 40 لاکھ میں بنائی، لیکن خیبر پختونخوا حکومت نے 6 انچ موٹی 1 کلومیٹر سڑک 1 کروڑ روپے میں بنائی ہے. کیا مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اپنی ٹویٹ میں یہ انہوں نے سوال کیا اور وضاحت دی اور سوال کیا کہ کوئی مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے. تو جرمن سفیر مارٹن کوبلر اپنی ٹویٹ میں خیبر پختونخوا حکومت کی شفافیت اور کارکردگی پر سوالات اٹھا رہے ہیں. اس حوالے سے آفتاب محمد اس وقت اس سڑک پر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مارٹن کوبلر کے دعوے کی حقیقت ایکچولی کیا ہے. بتائیے گا آفتاب، وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں ان کا کیا کہنا ہے؟ آج اس وقت ہم موجود ہیں نوشہرہ کے علاقے ازاخیل پر، جہاں پر جرمن حکومت نے جو روڈ بنایا تھا اور یہی روڈ جو جب صوبائی حکومت نے بنایا تھا 1 کلومیٹر روڈ ہے اور یہ تقریباً 1 کروڑ کی لاگت سے بنایا گیا تھا. اور یہاں پر جب ہم نے مقامی لوگوں سے بات کی تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ صوبائی حکومت کی جانب سے جو روڈ بنایا تھا وہ غیر معیاری تھا، اتنے معیار کا نہیں تھا، لہٰذا جرمن حکومت کو دوبارہ بنانا پڑا. اور سے یہ کوشادہ روڈ ہے اور یہ لگ بھگ 1 کلومیٹر پر واقع ہے. اس پر 2 یونین کونسل، لگ بھگ 5 کے 6 ہزار آبادی بھی واقع ہے جن کو سخت مشکلات کا سامنا تھا. اور خصوصاً یہ علاقے جو نوشہرہ کے نواحی علاقے ہے اور ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو وزیر دفاع پر سڑک جو ماضی میں یہاں کے مقامی منتخب بھی ہوئے تھے مقامی سطح پر، اور اس طرح وزیر خیبر پختونخوا بھی رہے. تو اس ساتھ ساتھ ان کا یہاں کے لوگوں کا کہنا تھا چونکہ یہاں پر ان کو آنا جانا پڑتا ہے اور اس طرح پشاور، اس طرح ساتھ ساتھ نوشہرہ کینٹ اور چونکہ دیہاتی علاقہ ہے، اور اس وقت جب روڈ دکھائی دے رہا ہے تو دکھائی دیا جا رہا ہے کہ جو صوبائی حکومت کی جانب سے بنایا گیا تھا. تو اس پر جو مقامی لوگوں نے بھی یہی سوالات اٹھایا کہ کیوں اس طرح ہوا کہ زیادہ. ہمارے ساتھ رہے گا ANP کے رہنما زاہد خان ہمارے ساتھ موجود ہے. زاہد صاحب بہت شکریہ آپ کا. مارٹن کوبلر جو کہ جرمنی کے سفیر ہیں، ان کی جانب گیا ہے کہ جب جرمنی نے یہ سڑک بنائی تھی تو 40 لاکھ میں بنائی تھی اور خیبر پختونخوا کی حکومت نے یہ سڑک 1 کروڑ میں بنائی ہے. اور انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ ہمارے لیے اس لیے خوشگوار بات ہے کہ پورا دنیا آنکھیں بند کر کے یہ کہتے رہے اور ساتھ ہماری میڈیا بھی کہ خیبر پختونخوا میں جو عمران خان کی حکومت ہے وہاں پہ نہر اور دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہے ہیں. لیکن یہ اچھا ہوا کہ خود جرمنی ایمبیسڈر کیا اگر یہ ہم کہتے تو یہ کہتے کہ جی یہ تو مخالفین ہیں. دیکھیے وہ تو جتنا کرپشن ہمارے صوبے میں ہوا ہے اور ہو رہا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو ریپڈ بس کا جو مسئلہ تھا یہ 27 ارب سے شروع ہو کے ابھی 80 ارب پہ چلا گیا. تو یہ سارا جو گردے سب وہاں پہ ہر ایک چیز میں جتنا آپ نے اسپتالوں میں، کالجوں میں، روڈوں میں، یہ سارے کرپشن سے بھرے ہوئے ہیں. لیکن نیب کا جو چیئرمین ہے اس کے صرف ایک ہی نظر ہے، ایک ہی طرف دیکھ رہے اور پھر وہ خود کہتا ہے کہ جی میں غیر جانبدار ہوں. غیر جانبدار وہ نہیں ہو سکتا ہے. جب ہائی کورٹ نے اس کے خلاف کہا، پشاور ہائی کورٹ نے، کہ یہ جو بس والا معاملہ ہے پشاور کا، اس کے خلاف انکوائری کرے، تو ابھی تک کچھ نہیں ہوا. تو یہی معاملہ ہم بہت پہلے سے کہہ رہے تھے. اور یہ سب سے بڑا، یعنی پہلے جب احتساب کمیشن بنا آپ کو یاد ہوگا اور عمران خان اس کی بہت زیادہ پبلسٹی کرتے رہے کہ جو میں نے ایسے بندہ بنایا، اسی بندے کو فارغ کیا کیونکہ اس کے 6 وزیر اور 1 وزیر اعلیٰ کے خلاف اس نے جب انکوائری شروع کی. تو یہ اس کا ہمارے سارے صوبے میں جتنا عمران خان نے اور آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل اچھی بات ہے کہ تاکہ دنیا کو پتہ چلے اس پہ داغ نہیں ہے. اگر اس پہ داغ نہیں ہے تو جو اس کے نیچے لوگ ہیں اگر وہ چوری کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کو پتہ ہے اور اس نے آنکھیں پھیری ہوئی یا آنکھیں بند کی ہوئی ہے یا کان بند کی ہوئی ہے. تو اس لیے ہم سمجھ رہے ہیں
کہ آپ اچھا کیا، آپ لوگوں نے بھی اس چیز کو اٹھایا، ہم مشکور ہیں آپ کے، اور ہم نے پچھلے 5-6 سال سے یہ چیختے رہے، لیکن ہمارے بات کو نہ پاکستان کی میڈیا سننے گوارا کرتی تھی، نہ کوئی باہر کے لوگ کرتے تھے، اور یہ سمجھتے کہ یہ سیاسی مخالفین ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ANP کے رہنما زاہد خان ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی شکریہ، اور آفتاب محمد آپ کا بھی شکریہ۔ ڈالر کی قیمت میں اضافہ کیا ہوا؟ مہنگائی کی نئی لہر آ گئی۔ پاکستان ریلوے کی جانب سے بھی کرایوں میں اضافہ کر دیا گیا، 10 سے 19% تک اضافے سے شہری چکرا کر رہ گئے ہیں۔ اسی بارے میں آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں۔ جس کا تھا ڈر وہ ہو گیا، ڈالر کی قیمت میں اضافے سے مہنگائی کا آ گیا نیا طوفان۔ پاکستان ریلوے کی جانب سے کر دیا گیا ہے کرایوں میں اضافہ۔ وہ بھی 10 سے 19%، اطلاق ہوگا 7 دسمبر سے۔ کرایوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ گرین لائن ٹرین کا کراچی سے راولپنڈی تک کرایہ 540 روپے اضافے کے بعد 5880 روپے ہو گیا۔ قراقرم ایکسپریس کا کراچی سے لاہور کا کرایہ 170 روپے کے اضافے کے بعد 1820 تک پہنچ گیا۔ کراچی ایکسپریس، بزنس ایکسپریس، شالیمار اور شاہ حسین ایکسپریس کے کرایوں میں 12% اضافہ کیا گیا۔ خیبر میل، عوامی اور علامہ اقبال ایکسپریس کے کرایوں میں 13% اضافہ کر دیا گیا۔ تیز گام کی تمام کلاسوں کے کرایوں میں 15% اضافہ کر دیا گیا۔ پاکستان ایکسپریس کے کرایوں میں سب سے زیادہ یعنی 19% اضافہ کیا گیا، اور سکھر ایکسپریس کی بھی تمام کلاسوں کے کرایوں میں 15% اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تو پاکستان ریلوے نے بھی الٹی گنگا بہا دی، پیٹرول ڈیزل سستا ہونے کے باوجود کرایوں میں 19% تک اضافہ کر دیا گیا۔ دوسرے ممالک میں ریلوے کا سفر سستا ہو گیا، جبکہ پاکستان میں کرائے بڑھا دیے گئے ہیں۔ خاص کر گرین لائن جو ہے اس میں ہم ایک کوچ اور بڑھانے جا رہے ہیں، اس کا کرایہ بھی سب سے زیادہ بڑھا ہے، اس میں فیسلٹی بھی دیں گے، 500 روپیہ اس کا کرایہ بڑھا ہے، اور نارملی ہم نے 100-125 کرایہ بڑھایا ہے۔ وزیر ریلوے نے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں کمی کو بہانہ بنا کر کرایوں میں 19% تک اضافہ کر دیا۔ دنیا بھر میں ہر قسم کی ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں اضافہ یا کمی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے۔ بھارتی روپے کی قدر میں بھی گزشتہ ماہ ریکارڈ کمی ہوئی، لیکن اس کی بنیاد پر ریلوے کے کرائے نہیں بڑھائے گئے۔ الٹا بھارتی ریلوے حکام نے 3 دسمبر سے متعدد ٹرینوں کے کرایوں میں 12 سے 40% تک کمی کر دی۔ آئرلینڈ نے بھی ریلوے کے کرایوں میں 6% تک کمی کی۔ پاکستان میں بھی پیٹرول اور ڈیزل تھوڑا بہت سستا ہوا ہے، لیکن وزیر ریلوے کی الٹی منطق ہے کہ ڈالر مہنگا ہو گیا۔ حالانکہ پاکستان ریلوے کے مجموعی اخراجات کا تقریباً 62% ملازمین کی تنخواہوں، پینشن اور الاؤنسز وغیرہ پر خرچ ہوتا ہے، جو پاکستانی روپے میں ہی دی جاتی ہے، ڈالر میں نہیں۔ بجٹ کی باقی رقم کا 40% پیٹرول اور ڈیزل پر خرچ ہوتا ہے۔ ڈالر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا براہ راست ریلوے کے اخراجات سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ تو ریل گاڑی مہنگائی کی پٹڑی پر چڑھ گئی ہے، ریلوے کی کرایوں میں 15% تک اضافہ ہوا۔ مسافر کہتے ہیں کہ مہنگائی کی چکی میں پستی عوام کے لیے سفر کو بھی مہنگا کر دیا گیا ہے۔ اسی بارے میں مزید جانیں گے، اویس علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس، کیا رائے ہے عوام کی اس بارے میں؟ جی بالکل، ڈالر کی قیمت میں اضافہ کے ساتھ ہی ریلوے کے کرایوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر، جہاں پر کرایے میں اضافہ کے باعث مسافر جو ہیں ان کی جانب سے جو ہے انتہائی افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں تو پاکستان ایکسپریس اور جو ہے وہ شالیمار ایکسپریس کے کرایوں میں 12% اضافہ کر دیا گیا ہے، اور علامہ اقبال ایکسپریس اور امام ایکسپریس کے کرایوں میں جو ہے وہ 13 روپے اضافہ کر دیا گیا، اور ملتان ایکسپریس کے کرایوں میں جو ہے وہ 7% اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ کچھ مسافر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ اچھا سر، کرایوں میں حکومت کی جانب سے اضافہ کر دیا گیا، کیا کہیں گے اس بار؟ یہ کرایوں میں جو اضافہ کیا گیا نا، یہ بہت زیادہ ہے، تو حکومت کو چاہیے کہ وہ کرایوں میں جو اضافہ کیا گیا ہے، خاص کر جو ملتان ایکسپریس ہے نا، کیونکہ اس میں جو تاجر حضرات وہ زیادہ آتے ہیں، تو ان کے لیے ریلیف ملنا چاہیے، بجائے اضافے کے کرایے کو کم کرنا چاہیے۔
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, इनका यही कहना है कि किरायों में इजाफा के बायस जो है वो कम करना चाहिए ताकि आवाम को जो है वो रिलीफ मिल सके। एक सस्ता जरिया सफ़र है, इसे सस्ता ही रहने दिया जाए, महंगा ना किया। अवैस बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। उधर कराची में रेलवे ट्रैक बने बच्चों के खेल का मैदान। वजीर रेलवे ने बच्चों से रेल पटरियों पर ना खेलने की अपील की है। रेलवे ट्रैक पर बच्चों के साथ हमारे नुमाइंदे हबीब खान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हबीब, अमली तौर पर इस ज़िमन में कुछ इकदाम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद की जानिब से जो है वो बच्चों से अपील की गई है कि बच्चे रेलवे ट्रैक पर खेलने से जो है वो गुरेज करें। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके महमूदाबाद से नजदीक एक रेलवे ट्रैक पर, जहाँ पे इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे जो है वो रेलवे ट्रैक से मुंसलिक एरिया पे जो है इस वक्त काफी खेल कूद का मुजाहरा कर रहे हैं। इन बच्चों से बात करते हैं और उनको पूछते हैं कि बेटा यहाँ पे आप लोग ये खेल रहे हो और वफाकी वजीर रेलवे जो है उनकी जानिब से अपील की गई है कि आप लोग जो ये रेलवे ट्रैक से इन पर ना खेलें, तो इस हवाले से आपकी जानों के लिए, आपकी हिफाजत के लिए वो ये अपील कर रहे हैं आपसे। तो इस पे आप क्या कहोगे और क्या आप इस पे रेलवे ट्रैक पर खेलना छोड़ोगे? यहाँ पे वजीर आजम ने भी जो कि मना किया हुआ है, यहाँ पे ट्रेनें चलती हैं, ये बच्चे यहाँ पे ऐसे खेल रहे थे जैसे हम खेल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे खेलना नहीं चाहिए, साइड पे होकर खेलना चाहिए। ट्रेन आती है, हर कोई इसके पास से जाता है, तो इनको पास से नहीं जाना चाहिए। थोड़ी देर सब्र कर लेंगे तो ठीक रहेंगे। जी बिल्कुल, जैसा आपने सुना कि बच्चा जो है वो इस हवाले से सारी मालूमात रखता है कि इस रेलवे ट्रैक पे वो समझता है कि खेलना सही नहीं है, और वो ये कहता है कि जो वजीर आजम और वफाकी वजीर रेलवे की जानिब से जो अपील की गई है, हम इस पे जो है अमल दरामद करेंगे और इस रेलवे ट्रैक पर खेलना जो है वो छोड़ देंगे। तो बिल्कुल बच्चों ने यही यहाँ पे बात की है कि हम जो है आइंदा से अब इस रेलवे ट्रैक पर जो है वो खेलने से गुरेज करेंगे और कोशिश करेंगे कि इससे मुंसलिक जो ग्राउंड वगैरह है वहाँ पे अपने खेलकूद को ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के इलाके कुरंगी में मर्जी की शादी ना होने पर नौजवान शाकिर खंबे पर चढ़ गया। शाकिर ने खुदकुशी की धमकी दी तो रेस्क्यू एहलकार आशिक को उतारने के लिए खंबे पर चढ़ गए। पसंद की शादी करवाओ नहीं तो कराची के इलाके कोरंगी में मर्जी की शादी न होने पर दिल बर्दाश्त नौजवान शाकिर खंबे पर चढ़ गया। नौजवान ने खुदकुशी की धमकी दी और खंबे से अपना मोबाइल फेंक दिया। रेस्क्यू एहलकार नौजवान से मुज़ाकरात के लिए खंबे पर चढ़ गए और हिफाजती इक़दामात के लिए जंपिंग शीट बिछा दी। शाकिर को उतारने के लिए मुज़ाकरात का पहला दौर नाकाम हुआ, लेकिन रेस्क्यू एहलकार मुज़ाकरात के दूसरे दौर में नौजवान नीचे लाने में कामयाब हो गए। पुलिस ने मौसूफ को हवालात में बंद करके इश्क का भूत उतार दिया। लाहौर से खबर शामिल करेंगे। लाहौर के इलाके काहना में दिन दिहाड़े ज्वेलर शॉप में डकैती की वारदात हुई है। डाकू अमले को यरगमाल बना के लाखों मालियत का 20 तोले सोना और 150 तोले चांदी और नकदी लूटकर फरार हो गए हैं। सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है, जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। लाहौर का इलाका है काहना, जहां पे ये वारदात हुई है। डाकू दिन दिहाड़े एक ज्वेलरी शॉप में घुस गए और लाखों रुपए के मालियत की नकदी और जेवरात लूट कर फरार हो गए। इसके अलावा जब वो दुकान में घुसे तो उन्होंने दुकानदारों को यरगमाल बना लिया और 20 तोले सोना और 150 तोले चांदी और नकदी लूटकर ये डाकू वहां से फरार भी हो गए हैं। सीसीटीवी फुटेज आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। लाहौर का इलाका है ये काहना, जहां पे ये वारदात हुई है और डाकू एक ज्वेलरी शॉप के अंदर घुसकर दुकानदारों को यरगमाल बना लिया और 10 तोले सोना और 20 तोले सोना और 150 तोले चांदी और कुछ नकदी लेकर ये डाकू लूटकर फरार हुए हैं और फरार होने में कामयाब भी हो गए हैं। अभी तक पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है या नहीं, इसके बारे में भी आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल आपको बता रहे हैं इलाका है लाहौर का ये काहना, जहां पे ये वारदात हुई है। इस हवाले से बात करेंगे। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है, पुलिस का क्या कहना है अब? बिल्कुल, अब से रवायती कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मौके से शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए गए हैं और वारदात का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। लेकिन काना का इलाका है जहाँ पर डकैती की वारदात हुई है। 4 मुसल्लह डाकू जो हैं वो दुकान में लूटमार करते हुए लाखों मालियत के जेवरात, उसके साथ साथ नकदी और दीगर सामान लूट कर फरार हो गए। इस वजह से अगर बात की जाए तो दुकानदार हमारे साथ मौजूद, उनसे जानेंगे वारदात कब और कैसी हुई। आप बताइएगा कि क्या आपका इस वारदात में नुकसान हुआ और पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की गई? पुलिस तो अभी कह रही है कि हम जल्दी से जल्दी आप हमें टाइम दें और आपका मसला हल किया जाएगा। और वारदात हमारी काफ़ी नुकसान ले गए हैं, हमारा सामान ले गए हैं। अचानक से एक बंदा अंदर आया, उसके बाद फ़ौरन से 3 बंदे अंदर आ गए हैं और सब ने हमारे सर पे गन रख दिया। तो एक सामान उतारता रहा, यानी कि कैमरे वगैरह तोड़ता रहा, और दूसरा ये सारा सामान निकाला है, उसने पैक किया और बाहर निकले हैं फ़ौरन से तो भाग गए हैं।
बिल्कुल, वारदात की मोबाइल फुटेज जो है वो भी मंजर आम पर आई, जिसमें देखा जा सकता है कि 4 मुसल्लह डाकू जो कि असलहा लहराते इस दुकान में दाखिल हुए और वारदात करने के बाद मौका से फरार हो गए। अलबत्ता पुलिस का ये कहना है कि मौका से तमाम तर शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं और वारदात का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। भेरा में निजी बैंक के ATM में चोरी की वारदात हुई है। CCTV फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली। मुलजिम की शरालों के लिए 2 लाख रुपए इनाम का भी ऐलान किया गया है। ये CCTV फुटेज आप स्क्रीन पर भी इस वक्त देख सकते हैं। भेरा में चोरी की ये वारदात हुई है। ATM में इन नामालूम अफराद ने घुसकर चोरी की वारदात की, जिसकी CCTV फुटेज मंजर आम पर आ चुकी है और मुलजिम की शनाख्त करने वालों के लिए 2 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया गया है। ठोकर न्याज बेग पर किसान इत्तेहाद और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नाकाम हो गए। पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने आ गए हैं। पुलिस ने सड़क के दरमियान खड़ी ट्रॉलीज हटाना शुरू कर दी हैं। इस हवाले से बात करेंगे, नासिर अली हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर, बताएगा इस वक्त वहाँ पे क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठोकर न्याज बेग पर और यहाँ पर किसान इत्तेहाद की जो रैली है वो यहाँ पर आकर रुक चुकी है और किसान इत्तेहाद ने यहीं पर ही अपने धरने का आगाज़ कर दिया है। तकरीबन इनको 24 घंटे होने वाले हैं यहाँ पर रुके हुए और जो ट्रैफिक की सूरत हाल है वो तो बहुत बुरी है, लेकिन दूसरी जानिब जो किसान है उनका ये कहना है कि उनकी भी बहुत ज़्यादा मजबूरियाँ है कि वो दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर पहुँचे और सिर्फ यहाँ पर हुकूमत को कोसा जा रहा है कि इनको खाद सस्ती नहीं दी जा रही, इनकी फसल के रेट इनको अच्छे नहीं मिलते, जो इनकी मेहनत होती है वो आड़तिया खा जाता है या वो मिल मालिक खा जाता है, लेकिन इनको कुछ नहीं दिया जा रहा और हुकूमत बिल्कुल इनके मसाइल से गाफिल है। हमारे साथ ये किसान भाई हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं कि इनके मसले क्या है और मुतालबे क्या है। जी इसको छोड़ जी पूछें जी, क्या पूछना चाहते हैं? आपका मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा है कि सबसे बड़ा मुतालबा आजकल जो है, हमें शुगर मिलें बहुत लेट हो गई। हमारी गन्ने की फसल 2 महीने से तैयार है। जब हम शुगर मिलों के पास जाते हैं, सेक्रेटरी फूड के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि वो शुगर मिल वाले नहीं चलाते। शुगर मिल वाले कहते हैं कि चीनी का रेट कम है। हम कहते हैं कि चीनी का रेट बढ़ा दो, 10-20 रुपए अगर चीनी का रेट ओपन हो जाए तो कम से कम हमारी गंदम की फसल बच जाए, हमारा गन्ना जो हार्वेस्टिंग हो जाए। हुकूमत की तरफ से कोई आया मुज़ाकरात करने? कोई हुकूमत की तरफ से हम लॉलीपॉप दिया जा रहा है, कोई डेफिनेटली कोई बात नहीं। इनका ये कहना है कि हुकूमत बिल्कुल सोई हुई है। हुकूमत ने जो वादा किया था कि किसानों को ऊपर लाएंगे, लेकिन किसान इस वक्त सबसे नीचे है। इसलिए इनकी जो गन्ने की फसल तैयार है उसको उठाने वाला कोई नहीं। मिल मालकान अपनी मर्जी का रेट लगा रहे, वो रेट लगा रहे जिनसे इनके खर्चे भी पूरे नहीं होते। जब एक फसल का खर्चा पूरा नहीं होगा तो दूसरी फसल की जो बुआई है वो कैसे होगी? आगे गंदम की फसल है तो वो गंदम की जो फसल है उसके लिए इनके पास पैसे नहीं है। इसलिए इनका मुतालबा है कि हुकूमत जो है रेट बढ़ाए, खाद्य सस्ती दे और दीगर जो सहूलियात दे ताकि इनकी जिंदगी में भी खुशहाली आए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बरतानवी और पाकिस्तानी शहरियत के हामिल वालिदैन की 5 महीने की बच्ची को शहरियत का इजरा पाकिस्तानी हुकाम के लिए इम्तिहान बन गया। सदर मुमलिकत ने वाक़े का नोटिस लेते हुए वजारत खारजा और दाखिला को इक़दामात करने की हिदायत कर दी है। बच्ची के वालिद बरतानवी जबकि वालिदा पाकिस्तानी शहरी है। बच्ची की पैदाइश अबू धाबी में हुई थी। ये मामला क्या है जानते हैं इरफान मलिक से। देखिए, ये बड़ा दिलचस्प वाक़या है जिसका सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने नोटिस लिया है। 5 माह की बच्ची है जिसके वालिद बरतानवी शहरियत के हामिल हैं जबकि वालदा पाकिस्तानी शहरियत के हामिल है और इस बच्ची की पैदाइश अबू धाबी में हुई थी। इस बच्ची की वालदा ने पाकिस्तानी सफारत खाने से रुजू किया कि बच्ची को पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी किया जाए, लेकिन सफारत खाने ने ये एतराज़ उठाया कि शहरियत के लिए सिर्फ वालिद ही दरख्वास्त दे सकता है। अबू धाबी के अखबारात में ये मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ जिसका सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने नोटिस लिया है और वजारत खारजा और वजारत दाखिला को हिदायत की है कि इस मामले का बारीक बीनी से जायज़ा लेकर मामला हल करने की कोशिश करें, क्योंकि एक पाकिस्तानी खातून की ये बेटी है, इसकी वालदा पाकिस्तानी है और इसकी ये इस वक्त ये बच्ची स्टेटलेस कहला रही है। इसकी कोई शहरियत नहीं है, दुनिया के किसी मुल्क में इसकी शहरियत रजिस्टर्ड नहीं है। इसी वजह से सदर मुमलिकत ने ये कहा है वजारत खारजा और वजारत दाखिला को कि इस मामले को संजीदगी से देखें और इस मामले को हल करने की कोशिश करें। इरफान, बहुत शुक्रिया, इस बारे में अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, कराची से आपको खबर देंगे जहां पुलिस ने कार्रवाई करके घरों में डकैतियां करने वाले मियां बीवी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार खातून नर्स का काम करती है और घरों में रैकी करके मुल्जिमान को आगाह करती थी। SIU ने भी एक कार्रवाई स्ट्रीट क्रिमिनल गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। कराची पुलिस की कार्रवाई, घरों में डाका डालने वाले मियां बीवी गिरफ्तार। SSP सेंट्रल आरिफ राव के मुताबिक दोनों मियां बीवी रुहेल उर्फ चांद और बुशरा बीबी उर्फ पिंकी दीगर साथियों के साथ मिलकर घरों में डकैतियां करते हैं। गिरफ्तार खातून नर्स का काम करती है और घरों में रेकी करके मुल्जिमान को आगाह करती थी।
मुल्जिमान ने हैदरी के इलाके में घर में डकैती की, जिसका मुकदमा भी दर्ज है। पुलिस के मुताबिक हैदरी के इलाके में की गई डकैती की वारदात में मुल्जिमान को फरार होते हुए देखा जा सकता है। दूसरी जानिब SIU ने हैदरी के ही इलाके में कार्रवाई करके स्ट्रीट क्रिमिनल्स के गैंग को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान में हैदर, अफजल और रेहान शामिल हैं। SIU के मुताबिक मुल्जिमान जिला शर्की, कोरंगी और जिला गुरबी में मोबाइल फोन छीनने की वारदातें करते थे। मुल्जिमान के कब्जे से 1 दर्जन छीने हुए मोबाइल फोन और 3 पिस्टल भी बरामद किए गए हैं। शकरगढ़ में दुकान के कब्जे पर झगड़ा हुआ। मुसल्ला अफराद की लाठी चार्ज के बाद अंधाधुंध फायरिंग की गई और फायरिंग से नवी जमात का तालिबे इल्म जाँ बहक हो गया, जबकि 7 अफराद जख्मी हुए हैं। झगड़े के दौरान करीबी स्कूल में छुट्टी हुई थी और ये बच्चा फायरिंग की जद में आकर जाँ बहक हो गया। शकरगढ़ में दुकान के कब्जे के मामले पर झगड़ा हुआ था। इस्लामाबाद में नमल यूनिवर्सिटी में 2 तलबा तंजीमों में तसादुम हुआ है। तलबा तंजीमों के दरमियान झगड़ा मैनेजमेंट साइंस के डिपार्टमेंट के बाहर हुआ। कुछ रोज कबल भी नमल यूनिवर्सिटी से मुल्हिका मेट्रो स्टेशन पर तलबा की लड़ाई हुई थी और आज फिर से नमल यूनिवर्सिटी में 2 तलबा तंजीमों में झगड़ा हुआ है। मैनेजमेंट साइंस डिपार्टमेंट के सामने ये झगड़ा हुआ है। और फैसलाबाद से आपको खबर देंगे, जहां ट्रैफिक पुलिस की तालिब इल्म के साथ गुंडागर्दी, हतकआमेज रवैया अख्तियार करने के बाद जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा लिया। फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। तालिब इल्म हनान का कहना है कि गाड़ी में बिठा के कुछ फासले तय करने के बाद 500 रुपए लेकर उसको छोड़ दिया गया था। फैसलाबाद में ये वाकया हुआ है, जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तालिब इल्म के साथ गुंडागर्दी देखने में आई। वफाकी हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की 2013 से 2017 तक के बैरूनी ममालिक के निजी दौरों की अखराजात की तफसीलात जारी कर दी हैं। नवाज शरीफ ने 4 सालों में बैरूनी ममालिक के 25 निजी दौरे किए, जिस पर 24 करोड़ 70 लाख रुपए से ज़्यादा के अखराजात आए। इसी पर मजीद तफसीलात हम जानेंगे। ज़ीशान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, इन तफसीलात में क्या हक़ाइक़ सामने आए हैं? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के जो साबिक दौरे इक़्तिदार में निजी दौरे थे बैरून ममालिक के, उनकी तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। मशीर जो मामले खसूसी बराए एहतसाब हैं अकबर शहजाद, उन्होंने आज जो तफसीलात जारी की हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो दौरे देखने को मिले हैं वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के लंदन के 20 दौरे हैं, जिस पे जो है काफ़ी ज़्यादा रुपए खर्च हुए हैं। और ये कहना था शहजाद अकबर का कि ये तहकीकात की जा रही है कि ये आया कि उनके ज़ाती खर्चे से इनके अखराजात किए गए या फिर सरकारी खर्चे पर वो गए। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर उनके दौरे थे वो 4 दौरे सऊदी अरब के उनके थे जो उम्रे की अदायगी के लिए किए गए। और इसके अलावा 1 दौरा उनका चीन का भी इसमें शामिल है। और 25 निजी दौरों पे 24 करोड़ और 70 लाख से ज़ायद का जो खर्चा आया है वो उस पर वफाकी हुकूमत जो अब तहकीकात कर रही है कि वो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के खर्चे से उस पर अदायगी की गई या फिर नवाज शरीफ ने वज़ाती तौर पर खर्च किया। और मामला जो है शहजाद अकबर का ये कहना था तहकीकात के लिए नैब के पास भी भिजवाया जा रहा है। जी ठीक है ज़ीशान, बहुत शुक्रिया इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और पंजाब के थिएटर्स में स्टेज अदाकारों की जानिब से SOPs की खिलाफ वर्जी जारी है। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिस लेते हुए जिलाई सतह पर नई मॉनिटरिंग टीम्स तश्कील देने का हुक्म दे दिया है। इसी पर बात करेंगे अली रामे से। जी अली, कुछ स्टेज ड्रामों के हवाले से जो SOPs 2017 में बनाए गए तो उस हवाले से महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि SOP पर अमल दरामद जो है वो नहीं हो रहा है, इनकी वायोलेशन की जा रही है। और उसी पर महकमा दाखिला पंजाब की तरफ से तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को ख़त लिखा गया है कि उनकी मॉनिटरिंग टीमें जो है वो मुतहर्रक करें और मॉनिटरिंग टीमें बाकायदा तौर पर निगरानी करेंगी थिएटर्स की, वहाँ पर स्टेज ड्रामों में क्या चल रहा है। तो इस पर जो SOPs बनाए गए थे और महकमा दाखिला पंजाब ने जो नोटिस लिया उसमें मालूम ये हुआ कि वायोलेशन किस चीज़ की हो रही है कि वहाँ पर लिबास जो है वो गैर अखलाकी लिबास जो है वो पहना जा रहा है स्टेज ड्रामों में। और इसके अलावा जो ज़बान इस्तेमाल की जाती है मुकालमों में और स्क्रिप्ट में वो भी गैर अखलाकी है। तो इस पर वल्गर लैंग्वेज के हवाले से, डायलॉग के हवाले से बाकायदा SOPs तय थे कि अगर कोई स्क्रिप्ट बनाया जा रहा है तो उसके लिए पहले वहाँ पर जो मॉनिटरिंग के लिए फोकल पर्सन तैनात किया गया है हुकूमत पंजाब की तरफ से स्टेज ड्रामों के हवाले से, उनसे अप्रूवल लेना जो है वो लाजमी है। तो इस पर महकमा दाखिला पंजाब की तरफ से वाज़ेह अहकामात हैं कि अगर कोई गैर अखलाकी इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हुए ये डांस परफॉर्मेंस में और लिबास पहनते हुए कोई आर्टिस्ट इस तरह नजर आया तो